So excited having you, ma'am. So thank you so much for joining. So Okay. for students, ma'am is having more than 18 years of experience in different field, including HR and people management. She has expertise and have experience in leading positions in different institute and the organizations. So currently, she is working in V Technologies in Salem. So, without much delay, we are so excited, ma'am, to hear from you, to get the knowledge from you, and especially on today's topic, emotional intelligence. So over to you, ma'am. Thank you so much. So nice of you. Nice words. I don't know whether I stand for it, but it was nice. सुनने में हमेशा अच्छा लगता है अच्छी बातें. क्यों? अच्छा लगता है ना? Yes, 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 definitely. But it is not like just good words. You deserve well it, you know. Okay. Thank you so much. Yeah. 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 Yes. So just like that, we will get into it, and we will see, how much I stand by your words and Mr. Prakash sir words, and I'll definitely, the session is for the students. So I've kept the level very simple for them to understand and follow. So hope this helps the students. Thank you so Yeah, much sure, for sure. the opportunity. No, over to you. Over to you. Yes. Can you just, present the PPT which I've sent? So this is you can process screen share. Yeah, just give 1 minute. So that classroom is so much noisy. That is it. You can switch off your mic. Yeah, because the class sound is coming. Yeah. My screen is visible. Yeah, yeah, yeah. Hope now the PPT is on the screen. No. No, 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 no. You can click the screen share, na? The icon you can click there. These are final year students, is it? Yeah, yeah, yeah. Finally, yes, student. Yes. Hope now it is visible. Yes, Now you it can is. see a full screen mode. So there you can make a Yeah. full screen. Yes, yes. Yeah. Is it okay? Yes, it is. It is. Yes, yes, yes. So, as you said, I should be using both the languages, reason it out, and solve some problems which comes on our way. Okay.
So maybe more of you know solution solving mindset. So intelligence is required, and intelligence is something which everyone has, and how we develop upon it is the bigger question. Okay, so the other word here is emotion. How are we going to connect this is the challenge. So what is emotion? Emotion is a kind of feeling, maybe how you react with your experience to some certain situation. It's a feeling such as happiness, love, or fear, anger, hatred, which can caused by a situation that you are in, or a, or I can say in past your own experience you would have developed some kind of a feeling towards a person, and you keep that in your mind every time you see that person. So that kind of an emotion you have for a person, right? आ, समझ लो सिक्स स्टैंडर्ड में आपके साथ किसी की लड़ाई हो गई, मे बी आपकी बहन के साथ हो गई, या फिर पापा के साथ हो गई। वो इंसिडेंट जब भी आपको याद आता है, आपके अंदर एक कड़वापन आता है, वो इमोशन के अंदर जाता है, लाइक आफ्टर 10 years ऑल्सो, 10 साल के बाद भी आप उसी को सोचते रहते हो। अगर उससे रिलेटेड कुछ घटना दिखती है तो आप पास में चले जाते हो। सो वैसे इमोशन को जो भी है, इमोशन के साथ इतना हो जाता है कि इंसान इंसान के साथ बात करना छोड़ जाता है। So that should not be the way. We should always have a more of good emotions, and we will deal with that slowly in this next couple of slides. So now we do have to combine these two words. So I'm trying to combine intelligence with emotion. Intelligence is it's a combination of your worldly things, what you learn out of surroundings, maybe from the book, from internet. All that helps you to develop your intelligence. But emotion is something which you yourself develop, because it's a feeling. See, same feeling I may not be having looking at a person or at a flower. Okay, there is definitely a disconnect. You can go to the next slide, please. There is definitely a disconnect how my brain thinks and how my heart thinks. Okay, yeah, my heart is all of feelings, and my brain is all of intelligence, right? So emotional intelligence is the ability to recognize, interpret, and regulate your own emotions, and understand with your intelligence and with your emotions you have to deal things. That is a wiser way of dealing it, right? आपका मन करता है, जो भी करता है आप कर देते हो, वो बात गलत है, सही है, ये हम पता करेंगे अभी। जो भी मन करता है, हमें पता है, दिमाग बोलता है हमसे ये गलत चीज है, ये करनी नहीं चाहिए, मगर हम करते हैं। क्यों करते हैं? जस्ट बिकॉज हमारे अंदर जो फील है वो अच्छा है। मगर दिमाग के अंदर जो इंटेलिजेंस है, जो बुद्धि हमें सिखाता है, वो ज्यादा अच्छा होता है। मगर हम जो करते हैं वो अपने अच्छे के लिए, फील गुड जो हमें मिलता है उस लिए हम करते हैं। तो वैसा करना ठीक है, नहीं है, और ऐसा ही है तो उस पे हम कैसे कंट्रोल करें? जैसे सबको पता है, पढ़ना अच्छा है, अच्छी बात है। पापा बोलते हैं, मम्मी बोलते हैं, प्रकाश सर बोलते हैं, सब बोलते हैं, मगर हम करते हैं? नहीं करते हैं, क्योंकि हमेशा हमें ये प्रेशर्ड जो देता है, जो पढ़ाई हमें प्रेशर देती है, वो अच्छी नहीं लगती। अगर हम ये बोले कल छुट्टी है, तो सबको अच्छा लगता है। तुम तुरंत एक इमोशन से लेके दूसरे इमोशन को अडॉप्ट हो जाते हो। वो कैसे होते हो? क्योंकि वो तुम्हें अच्छा लगता है। सो उसमें क्या होता है, तुम्हारा मन और बुद्धि के बीच में बहुत सारा बड़ा सा ब्रिज हो जाता है। वो ब्रिज ऐसा हो जाए कि आप समझ नहीं पाते किस तरफ हो। तो अभी अभी ये करना चाहिए, दोनों को बैलेंस करके चलना चाहिए, है ना? ये स्किल है, इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल है। स्किल हम किसको बोलते हैं? स्किल इज अ वर्ड विच कैन बी डेवलप्ड।
ओके, जैसे कम्युनिकेशन स्किल हो गया, इसको हम डेवलप कर सकते हैं। सो इमोशनल स्किल्स भी, इंटेलिजेंस भी हम डेवलप कर सकते हैं। सो इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल्स आर एबिलिटी दैट अलाउज फॉर अ बेटर personal well-being and interpersonal relationship. Now I have a question. Do you all agree that intelligence is something to do with brain and emotions are with your heart or mind? Do you all agree that? Yes, no, all right. Yes, ma'am. Yes. Okay. So more often our brain doesn't agree with heart. Example, you are in love with the wrong person, but still you keep loving. You're right, please. Yes. So there is something called, how to I balance, and then there are certain words which I'll definitely explain you. Something is called self-awareness, and it is more about your ability to understand your own feeling. आपके साथ क्या हो रहा है, अपने आप को पहले समझना चाहिए। आपके आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या थॉट्स हैं, उसके लिए आप क्या एक्शन करने वाले हो, ये सब आपको पहले खुद को समझना चाहिए। वो होता है सेल्फ अवेयरनेस, योर एबिलिटी टू परसीव एंड अंडरस्टैंड द थिंग्स दैट मेक्स यू हु यू आर एज एन इंडिविजुअल। लाइक आप जैसे बर्ताव सबसे करते हो, वही आप बन जाते हो कुछ दिनों के बाद, राइट? इंक्लूडिंग योर पर्सनालिटी, एक्शंस, वैल्यूज, बिलीव्स, इमोशंस, थॉट्स। सो ये एक साइकोलॉजिकल स्टेट अपने आप में अंदर ही अंदर बनता रहता है। तो तब जाके बोलते हैं कि आरती है वो ऐसे करती है, प्रकाश जी हैं वो ऐसे करते हैं। तो अपने अंदर ही जो आप रिपीटेडली जो एक्शंस करते हो और वो आपका पर्सनालिटी बन जाता है। तो कितना ध्यान रखना पड़ता है अपनी पर्सनालिटी में, है ना? हाँ कि ना? Yes, ma'am. सो सेल्फ अवेयरनेस इज, so now the next word is self-regulation, is an ability to manage your thoughts, emotions, behavior in that way, which will help you to reach your goals and also adopt the changing circumstances. Like for example, अभी हो गया आपको कहीं आपको स्कूल, अभी कॉलेज में हो, ठीक है। अभी आपको अपने फ्रेंड के घर जाना है, तो आप अपने आप को क्या सोचते हो, क्या करते हो, अपने प्लानिंग करते हो कि मैं 8 बजे उठूँगा, नहा धो लूँगा, खाना खा लूँगा, सब कर लूँगा, 10 बजे के अंदर मैं पहुँच जाऊँगा। ये आप अपने आप को सिर्फ रेगुलेट करते हो किसी एक चीज़ के लिए, ठीक है? और हमेशा ये रेगुलेशन जो होता है, वो मन पसंदीदा होता है। लाइक व्हेन यू लव टू डू समथिंग, यू सेल्फ रेगुलेट योरसेल्फ। Assume, yeah, why you think, why students generally don't like to go to college or schools? Because they don't like, because it makes them to come to a disciplined, structured, atmosphere, a conditioned atmosphere, which we nobody likes. You have to get up, brush your teeth on time, eat, your bus will come, all that shouting will be there in the, all hectic choirs will go on here and there. So you don't like it. But self regulation ka दूसरा नाम है, you discipline yourself, slowly. Wherever you go, you might be of 20 years now, wherever you go, whatever you do, if you are not disciplined, if you are not, self regulated about your, daily routines, it's very very difficult, very difficult. So please, have some discipline, which will definitely help. And it helps everything in your life. So next point is on motivation. Motivation, you all know, again, we all motivated for our own good things, good feels, but we never, strain ourselves. Okay, example, कितने लोगों को अच्छा लगता है? Yes, ma'am. हाँ, किसी Yes, ma'am. एक का नाम लो, क्रिकेटर। Ma'am, Rohit Sharma, my favorite batsman. महेंद्र सिंह पूरा टीम धोनी का मैम। नाम ले दिया, पूरा टीम। अच्छा 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 अच्छा।
उनमें क्या है जो आज तुम लोग उनको जानते हो? What is there in them that today you are taking their names? You are somewhere, do they know you? No. You are somewhere in the West, you know, and these people are somewhere in Delhi, Bombay. उनमें क्या था और क्यों? किसी को तो बोलना चाहिए। रोहित शर्मा का नाम किसने लिया था? हेलो हेलो मैम। मैम महेंद्र सिंह धोनी ने वर्ल्ड कप जितवाया इसके लिए। अच्छा, धोनी ने ऐसे जीत लिया। क्या किया उसने? What did he do? मैम देश के लिए बहुत मतलब T20 वर्ल्ड कप, ODI वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी का मतलब खिताब पाया है इंडिया। वो ठीक है, गुड। उनका अचीवमेंट आप मेरे को बोल रहे हो, मगर वो अचीवमेंट पाने के लिए उन्होंने क्या किया? Practice. प्रैक्टिस, यस। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? 1 दिन होता है या 2 दिन होता है? Consistent practice. कंसिस्टेंसी, हाँ। तो उसने सबसे पहले ये तो किया होगा कि एक गोल सेट किया होगा अपने दिमाग में, है ना? आप लोगों में सभी के पास एक गोल है या नहीं? या गोल Yes. होना चाहिए? होना चाहिए ना गोल? यस मैम। हुँ। यस मैम। सो गोल हो जब जिसके पास गोल होता है, वो मोटिवेटेड होता है। वो उस तरह से लेके उसको चलता है अपनी तरफ को टू रीच दैट गोल ही मेक्स हिमसेल्फ लाइक दैट, राइट? वो रोज प्रैक्टिस इसलिए किया था, उसको उस गोल दिख रहा था, सामने उसने गोल खड़ा किया था कि मैं ये पहुंचूंगा, आज नहीं तो 10 साल बाद। हमारा गोल क्या है? हम किसके पीछे दौड़ते हैं? हम क्यों करते हैं? हमारे पास कुछ जब कोई गोल नहीं होता, हम देर से उठते हैं, हम अपने आप को सेल्फ रेगुलेटेड नहीं बना के रख पाते, हमारे अंदर कोई डिसिप्लिन नहीं होती, हम देर से सोते हैं, हम इंटरनेट से अलग नहीं हो पाते। तो ये कहाँ का रास्ता ढूंढ रहे हैं हम लोग? क्योंकि हमारे पास कोई गोल नहीं है। अगर आप लोगों को मंदिर जाना है और इस समय पे जाना है, एक प्लानिंग करना होता है, और अगर दूर है, पैदल जाना है, उसके लिए एक प्लानिंग होता है। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल टू रीच वन पर्टिकुलर डेस्टिनेशन, बट योर लाइफ योर लाइफ शुड डेफिनेटली हैव अ गोल। यस और नो? यस और नो? Yes, ma'am. यस मैम। अगर आपके पास गोल नहीं है, तो प्लीज आज शाम तक कुछ ना कुछ छोटा सा बना लीजिए। गोल के बिना इंसान कुछ नहीं होता। जैसे जानवर होते हैं ना, जानवर के पास कुछ गोल होता है? कुछ नहीं होता। जैसे चरने जाते हैं, चरते रहते हैं। हुँ? तो हम लोग वैसे नहीं हैं। So though as a human, and it is very, very important for us to have a goal so that we are motivated every day to achieve that. It's very important to break an old habit and develop a healthy one. जो आपके पास अच्छे गुण हैं, उसको बरकरार रखिए अपने पास। जो ठीक नहीं है, जो खुद जानते हो, उससे पीछा छुड़वा दीजिए। इससे क्या होता है, आपके पास टाइम मिलता है, ज़्यादा टाइम होता है, ज़्यादा एनर्जी होती है बात करने की, ज़्यादा सीखने का समय मिलता है। ये जो टाइम है अपने पास, इसको मतलब बहुत-बहुत सोच के इस्तेमाल करिए। ये जो आप लोग कर रहे हो ना, इंटरनेट की जीबी, डेटा वगैरह, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, दोबारा नहीं आने वाला। अगर आपने मोटिवेट आपके अंदर मोटिवेशन हो गया, आप मोटिवेटेड पर्सन हो, खुद सब कुछ पीछे-पीछे आ जाएगा। किसी कोई शिकायत की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। कोई कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सो प्लीज़ यू नो, यू स्ट्रगल getting motivated,
but please get motivated, especially if you have mental health condition such as depression, anxiety वगैरह होता है. जैसे लोग, I don't know आपके क्लास में कितने लोग हैं सबसे बात करते हैं, कोई एक दो बच्चा होगा जो किससे बात करने की पसंद नहीं करता होगा, वो मिंगल नहीं होता होगा. सो वो उस बच्चे के लिए मैं बात कर रही हूँ अभी. प्लीज आप अपना इंटरेक्शन बना के रखना सबसे, और कुछ मोटिवेशन लेके चलो, सो दैट योर लाइफ फंक्शनिंग स्किल्स गेट्स डेवलप्ड. एंड द नेक्स्ट वर्ड वुड बी एम्पैथी. एम्पैथी क्या होता है, पहले मैं इंग्लिश में बोल देती हूँ. इट्स एन एबिलिटी टू यू नो अंडरस्टैंड द अदर पर्सन्स इमोशन. अगले पे क्या चल रहा है, दूसरा दुखी है तो हमें पता होना चाहिए वो क्या फील कर रहा है. So someone else might be thinking or feeling about your pain. That is very, very important. You should have that empathy. Yes, पहले empathy घर के अंदर से शुरू होती है. मगर हम लोग उल्टा करते हैं, एंड स्पेशली इंडियंस. हम बाहर लोगों के साथ ज़्यादा होता है हमारा, घर के अंदर लोग मम्मी के साथ पापा के साथ नहीं होता. वो बहुत गलत बात है. तुम जा रहे हो रास्ते में, किसी का पैर दबा दिया, आपने तुरंत बोल दिया सॉरी. बोलते हो कि नहीं? बोलते हो कि नहीं? Yes, ma'am. हाँ, मगर मम्मी का कुछ पैर नहीं, पूरा पैर तोड़ दिया तब भी नहीं बोलते हम लोग. सो जहाँ एम्पैथाइज़ होना चाहिए, प्लीज़ आप अपना जो क्वालिटी है अपने अंदर वो बढ़ाइए. या और सोशल स्किल्स आर स्किल्स टू कम्युनिकेट, इंटरैक्ट विद ईच अदर. दिस इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट टू बी socializing and be with some vibe. So social skills बात करके ही नहीं होता है, नॉन वर्बल भी हो जाता है, कभी-कभी जेस्चर्स के साथ भी होता है, और पर्सनल अपीयरेंस के साथ भी होता है. मगर एक कम्युनिटी अपने आप ज़रूर बनाइए जो 80 साल तक आपके साथ रहे. वो होता है. एक एक 10 मेरे पास कितने फ्रेंड्स हैं? 50 हैं. फेसबुक में 6000 हैं. मगर वक़्त में कौन काम आएगा? कोई भी नहीं. ऐसा नहीं होता. So it's okay to have handful of friends, and please have friends first in place, and be with them, talk to them, and for good reasons, pull them out if somebody is going low. So that kind of a friendship you should have. And ये इमोशनल इंटेलिजेंस इन जनरल क्या होता है? तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Getting along with people, involving being kind, friendly, tactful, demonstrating positive interaction, and helping each other, taking responsibility for your action, not blaming, knowledge, for example, if I say accepting, the consequences of your own decisions, actions, both bad and good. So वो होना चाहिए अपने अंदर. गलती किसी पे डालना समझदारी वाली बात नहीं है. वो सब कर सकते हैं. गलती अपनाओ, उसके बाद उस गलती को दोबारा दोहराओ नहीं, और उससे सीखो. ये होना चाहिए. और अपनी हॉबीज जो भी हैं, हमेशा एक हॉबीज तो रखो ही रखो. अच्छा हॉबीज रखो, और उसमें ध्यान दो थोड़ा. जब भी आप लगता है आपको लो फील कर रहे हो, तो कनेक्ट विद योर हॉबी एंड गेट योरसेल्फ मोर टुवर्ड्स इट. एम्पैथी के बारे में हम लोगों ने बात ही किया है. तो एम्पैथी ये भी होता है, कभी-कभी आप किसी का दुःख सुन लो, बी अ गुड लिस्टनर, एंड let people have their own way to reflect it, but just be listening to them. Okay. And आपको पता चलता है आपके दोस्त में से कोई एक ऐसा है जो हमेशा हंसमुख रहता है, आज वो ठीक नहीं है, तो गो टॉक टू हिम, हेल्प हिम आउट. दिस इज वन वे ऑफ empathizing with him. And be aware of others pain points, behave that way. हमें पता नहीं चलता किसी और की जिंदगी में क्या गुजरे. We never know what's happening with them, but it is very, very important that
you be, helpful to them. If you see something going wrong with your friends, be with them. That's all. It's not necessary he has to talk to you something. Okay. And the best thing is that you have to focus on the present moment, living in the moment, and your entire state of moment, focus should be in the moment. Okay. And it won't definitely help you about, worrying about your past. So we have to definitely practice mindfulness. माइंडफुलनेस डजंट मीन आप कुछ ज़्यादा ही योगा में बैठ जाओ या मेडिटेशन में कर लो, थोड़ा बहुत कर लो। बोलते हैं लोग अच्छा है, मुझे पता है। स्टूडेंट्स हो आप, एक एक जगह में बैठने के लिए दिक्कत होती है। मोबाइल के साथ इतने लगने से अच्छा नहीं होता। तो आप एक काम कर सकते हो छोटा-सा, मैं 10 मिनट मोबाइल के बिना बैठूँगा, मेडिटेट करूँगा। थोड़ा-सा कर लो, अच्छी बात है। फोकस ऑन योर ब्रेथ। वैसे तो ये चलता रहता है आगे-पीछे, किसी को मतलब पता भी नहीं चलता, साँस चल रही है, भगवान ने बहुत अच्छा काम कर दिया है, तो अपना अंदर जाता है, अपने आप बाहर आता है। थोड़ा-सा उसमें भी ध्यान ले रख लो, कितना मतलब मैं कर रहा हूँ, कितने तेज़ी से मैं भाग सकता हूँ, उसके बाद मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं क्यों इतना साँस फूल रहा हूँ, ऑल these things are important because nowadays younger generation, they don't do anything out of classroom. You should be in grounds. And definitely take a break from technology, connect with nature, go outside, be with nature, and foremost thing, practice gratitude. uh, I don't know whether you understand by the word gratitude. कोई बोल सकता है gratitude क्या है? Thanking all of you. Good, good. So you have to be really thankful whatever you are today. We never know while we speak now. It is 4 o'clock, 36 minutes. We will not know that outside this whole world, outside this classroom session, or maybe of this webinar, we never know who is going through what, who is about to meet an accident, who is going to lose their loved ones, and who is really hungry, is waiting for their food for this day, one time meal. So there are lot many things, lot many things. We don't go to that part of world at all. We just think, okay, today I'm happy, that's all. So thank your food, thank your dress, thank your parents. Be grateful. That is the only way to be really happy. Whatever you have, if you're happy, that's it. Asking more is not greed, but have a goal. Okay. And don't do multitasking thinking that you'll be able to do it. Take one step at a time and be focused on it. See to that uh, you're motivated to do that alone, and end result, the outcome comes out of it. Okay. So setting boundaries is again a very very important factor. Some good example for setting boundaries includes declining something. Like setting boundaries क्या होता है, तुम्हें पता है तुम्हें किसको हाँ बोलना चाहिए, किसको ना बोलना चाहिए. So declining things you don't want to do, expressing your feelings and responsibility, talking about your own experience honestly, addressing the problem directly with the person जिसके साथ हुआ है उसी के साथ बात करो. इसमें 5 लोगों को मिलाने की जरूरत नहीं है. सो और जब आप ऐसे करोगे आपके साथ भी वैसा ही होगा. सो setting boundaries takes practice. It involves deciding what behavior is okay and what is not, and how to respond when someone crosses your boundaries. Okay. So next slide please. Next.
Yes. See here, EI is the one currency जो नया नोट है, जो अभी वर्क प्लेस में चल रहा है, वो ये है because you are all in the final years now, you should know how to deal with your emotional intelligence. अगर आपका behavior ठीक नहीं है, your attitude towards your work is not good, you will not be considered a good employee. आप कितना भी अच्छा काम कर लोगे, अगर आपका बिहेवियर ठीक नहीं है, तो काम पे ज़्यादा दिन नहीं रुक पाओगे। सो अच्छा एटीट्यूड रखो अपना, बिहेवियर अपना ठीक कर लो जहाँ करना चाहोगे। तुम्हें पता है क्या, तुम लोग बड़े हो, यू आर अडल्ट नाउ, सो हैंडल योरसेल्फ केयरफुली, हाउ यू टॉक, हाउ यू बिहेव, व्हाट इज़ द बॉडी लैंग्वेज, what are you communicating, how are you communicating that. All these things are small small things, but gives you a bigger personality. Please work on all those things. Yes or no? Yes or no? Awake? यस मैम। कितने लोग हो? सारे निकल में पता चला मैं अकेली में बात कर रही हूँ। Yes or no? Yes. यस मैम। Next slide please. यस मैम। Next slide please. Next. आगे चलेगा। And this one? You have to cross eighth one. You are in the seventh one. Mm. Yes. Okay. So the you saw now a picture. Go to the seventh one, please again. So mantra is that you go by your heart, but when you are going by your heart, please take your brain. इसका मतलब ये हुआ कि जो भी तुम्हें अच्छा लग रहा है वो करो, मगर थोड़ा दिमाग लगा के करो। ठीक है ना? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ठीक है, हाउ डू आई अंडरस्टैंड व्हाट आर लो इमोशनल थिंग्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस एंड हाउ हाउ व्हाट डू आई डू फॉर हायर इमोशनल इंटेलिजेंस। मैं इधर हूँ, मैं वहाँ पे कैसे जा सकता हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सो पहले मैं आपको ये समझा दूँ क्या है लो इमोशनल इंटेलिजेंस। जैसे अभी मैंने बोला लैक ऑफ एम्पैथी हो गया, पुअर कम्युनिकेशन और रिएक्टिंग इम्पल्सिविटी and inability to handle criticism। किसी ने आपके बारे में कुछ बोल दिया है, तो आपको तुरंत गुस्सा आ जाता है और उधर आप अपना बिहेवियर को चेंज कर देते हो, और बहुत फ्रीक्वेंटली लड़ने झगड़ने में चले जाते हैं हम लोग, और इमोशनल आउटबर्स्ट होते हैं, और स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाते, इनएबिलिटी टू मैनेज स्ट्रेस, अवॉइड इमोशनल कॉन्वर्जेशन, अवॉइडेंस ब्लेमिंग ऑफ अदर्स, लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, ये जो भी है, ये सब लो इमोशनल इंटेलिजेंस फैक्टर्स हैं। सो इसको हम बदलना चाहते हैं तो कैसे बदले? तो उसका जो है, अगर आप ये बोल रहे हो कि मैं सेल्फ अवेयरनेस क्यों नहीं हूँ, क्यों नहीं बन सकता, बिल्कुल बन सकते हो। तुम अगर रिएक्ट करके रिस्पॉन्ड करना शुरू कर लो। रिएक्शन होता है, जैसे उसने मुझे थप्पड़ मार दिया, मैंने तुरंत उसको वापस कर दिया। भाई मैं नहीं रखूंगा किसी का थप्पड़। तो इसमें क्या हो गया, उसके और आपके बीच में कोई अंतर नहीं रहा। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बोथ इंडिविजुअल्स नाउ। देयर शुड बी सम गुड डिफरेंस, राइट? जो गलती वो करेगा हम भी करें, ये गलत बात हो जाती है। तो अपने अंदर अपना बिहेवियर को करेक्ट करने के लिए आप आप एक बार उससे यू टॉक टू हिम, understand why he did it, and that's when there will be a change in both of you. So you have to be more self awareness create करो अपने अंदर, empathy law, effective communication रखो, और इमोशनल रेगुलेशन लेके आओ अपने अंदर,
बार बार आउटबर्स्ट होते रहोगे, वो बहुत गुस्सा वाला है, उसके पास मत जाओ। ये अपना टैगलाइन मत बनाओ। इसमें कोई हीरोइज्म नहीं है। गुस्सा सबको आता है, जानवरों को भी। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो उस पे अपने आप पे उस पे काम करो और सोशल स्किल्स अपना बढ़ाओ, अडॉप्टेबिलिटी एक्सेप्ट करो उस सिचुएशन को और उसके साथ चलने के लिए कोशिश करो। सो स्लोली दिक्कत तो होएगी क्योंकि हम लोग ने किसी की बात मानी नहीं आज तक। कोई आ रहा है अभी बोल रहा है कि बात मान लो, तो होने में मुश्किल है, मगर इम्पॉसिबल तो नहीं है। वो करो और आप आपको किसी ने कुछ कह दिया तो उसको कैसे हैंडल करो, ओपननेस टू गेट द फीडबैक, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म विदाउट बिकमिंग डिफेंसिव और अपसेट। लगेगा, थोड़ा तो लगेगा, फिर अपने आप में वो ठीक हो जाएगा। सलमान खान का और उसका नाम क्या है, शाहरुख खान का हर फिल्म तो नहीं हिट होता ना, उसको भी तो गलत फीडबैक आते हैं, उसकी भी तो मूवी नहीं जाती, तो उसको एक्सेप्ट करता है। वैसे ही छोटी छोटी चीजें हमें एक्सेप्ट करनी पड़ती है और उसमें गलत कुछ नहीं है। अगर कोई मिल जाता है, आपको अपना सच्चा दोस्त होता है, वो सच्ची बात बताता है, भाई तू यहाँ पे पढ़ लियो, तेरे गंदे नंबर आए थे लास्ट बार, इस बार पढ़ लियो वो अच्छा। और तुम्हें जो घुमाने रोज लेके जाता है वो गलत है, उसको बोलना चाहिए तुमसे। तो वैसे लोगों के साथ रहो। अंदर डेफिनेटली यू पीपल शुड हैव अ गोल, अ पर्सनल ग्रोथ, and always combined your goal and your activities towards positive attitude. And definitely it will be challenging, but challenges are good, it's really good. And stress management is very very important. Ability to cope up, to reduce the stress. स्ट्रेस के लिए तो बहुत ही बड़ा टॉपिक है, मगर आपको मैं ये जरूर बताना चाहूंगी, आजकल बहुत इजी हो गया सब लोगों के लिए स्ट्रेस का वर्ड यूज करना, डिप्रेशन यूज करना। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसे। स्ट्रेस होना चाहिए इंसान को। इट्स गुड टू हैव स्ट्रेस, बट हाउ गुड टू हैव स्ट्रेस? टू मच इज बैड। यू शुड हैव गुड स्ट्रेस, नॉट बैड स्ट्रेस। एंड वो बैड स्ट्रेस जिसके लिए होता है, फॉर दैट यू हैव टू ऑर्गेनाइज एंड प्लान। थोड़ा बहुत प्लान करो तो उससे स्ट्रेस नहीं हो। हमेशा ये करते हैं हम लोग, देर से उठते हैं, नहाते धोते हैं, मम्मी को बोल देते हैं, मम्मी बेचारी 6 बजे से उठ के खाना बना के रखा होगा, नहीं नहीं मेरे को आज नाश्ता नहीं खाना, भाग लिया जी घर से। किसको स्ट्रेस किया इसमें? खुद को, मम्मी को, घर वालों को, सबसे बड़ी बात खुद की पेट को, है ना? यस और नो? Yes, ma'am. हाँ, तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसके बारे में हमने बात किया अभी, जैसे एटलीस्ट ये इस 4 पॉइंट्स जो भी हमने इसमें दिए हैं, इसको अगर आप मान के चलते हो तो दैट विल बी रियली गुड। Become a good listener, be more of positive with more of positive vibes, positive attitude, and अपने आप को संभाल के रखो, काम रहो, कंपोस्ट रहो, and be more, thoughtful what you do. Yes, yes, okay, Yes. yes. Now I think some understanding would have come, and I want you to ask questions so that I can see how I can help you out. Satyajit? Yes, ma'am. Yeah, students, please ask whatever queries, whatever understanding you would like to know from ma'am. This is a good opportunity for you. Please feel free to ask any question.
Ma'am, I have a question. Yes, Subhankar. Ma'am, जैसे कि हम लोग पीडीएफ देख के मोबाइल में ही पढ़ते हैं, कभी कभी मतलब क्रेविंग आता है कि यूट्यूब देख ले, फेसबुक देख ले, कैन वी मैनेज दैट? लोगों के पास फिजिकल किताब नहीं है या कॉस्टली पड़ता है? सर, कॉस्टली है। कॉस्टली पड़ता है। अच्छा। और वो जो पीडीएफ आप पढ़ते हो वो डाउनलोडेड होता है ऑलरेडी? Yes, ma'am. अच्छा। अगर आपको यूट्यूब में जाना है, व्हाट्सएप देखना है तो वो इंटरनेट यूज होके जाता है ना? इंटरनेट यूट्यूब के लिए नहीं। Yes, ma'am. हाँ हाँ। अच्छा, आप पीडीएफ कब पढ़ते हो? लाइक पढ़ाई का टाइम क्या है आपका? लाइक Any time. एनी टाइम पढ़ते हो? ठीक है। पहले अपना पढ़ाई का टाइम फिक्स कर लो। जैसे हो गया 7 से लेके मैं 9 तक पढ़ लूंगा। उसके बाद मैं अपना नेट मोबाइल डेटा को ऑन करके यूट्यूब चला जाऊंगा। ठीक है ना? और जो भी आप नेट में अपना टाइम वेस्ट करते हो या फिर उसको अच्छी तरह यूज करते हो, उसका भी टाइम रखो अपने पास। आई एम नॉट टेलिंग बिकॉज विदाउट इंटरनेट यू विल नॉट लिव, यू कैन नॉट। But one thing what we can do is we can have a time scheduled for both the activities. And towards your studies, I would request you to keep a longer period. And for your other activities, just say that out of 12 hours in a day, when I am awake, I will be using 1 hour, 1.5 hours of internet for my enjoyment, whatever you call it as. But if you're not disciplining yourself with mobiles, it is going to eat all your time. पढ़ने के लिए टाइम नहीं रहेगा आपके पास पक्का. So that's a good question. At least you have that thought in you that I'm losing my time somewhere and how do I restrict? I really appreciate. Very good. But being conscious is good, but put that into action and give stipulated time for both your activities, because if I say don't use it, you will not. That it is impossible. Use it, but you're conscious, give certain time period to use it. That's all. So make a timetable for it. It will work. And that will become a practice. You have to do it for 48 days, then it will become a practice. Any habit. That's what they say. But you have to, you have set a goal now, drive yourself towards it. Thank you, madam. All the best. Yes, Akash. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Akash. मैम गुस्सा कंट्रोल कैसे कर रहे हैं? का मतलब आपको बहुत गुस्सा आता है? यस मैम. आप कितने साल के हो? व्हाट इज योर एज? 72 प्लस हो गया. वो प्लस कितना है? अभी 22 चल रहा है. तुम्हें पता है तुम्हें गुस्सा कब कब आता है? जब कोई मतलब जब कोई मतलब जब कोई कुछ बोलता है तो एक छोटा सा स्टोरी सुना आपने? हाँ, हाँ. ठीक है। मेरे को बहुत दिन हो गए हिंदी बात किए हुए, मगर मैं कोशिश करूंगी मैं हिंदी में बात करने की, लाइक
एक बंदा था वो वॉक करता है सुबह, ठीक है? एवरी डे मॉर्निंग ही गोज़ फॉर अ वॉक एंड देयर इज़ अ डॉग बिहाइंड द gate. It keeps barking. Okay. Every day the same thing happens. And this fellow, crosses the gate and he goes for walking. तो ये रेगुलरली यही होता है। तो उसके साथ और एक दोस्त है, अ, वो आकाश है, ठीक है? आकाश और दिस गाय, बोथ ऑफ देम दे आर गोइंग फॉर अ वॉक नाउ। दोनों चल रहे थे। जैसा ही वो गेट आया, वो कुत्ता ने भौंकना शुरू कर दिया। और आकाश को तो पता है ना, आकाश के बारे में सबको, कि वो गुस्सा वाला है। मगर ये जो पहले से वॉक कर रहा था, वो अपना रास्ते निकल गया। मगर ये आकाश ना, इसने क्या किया, कुत्ते से बातचीत चलानी शुरू कर दी। तू भौंक क्यों रहा है? पत्थर मारा उसे, उसने भौंका, ये हुआ। और जो साथ में चल रहा था वो काफी दूर पहुंच गया तब तक, ठीक है? अब इसमें सोचने वाली बात ये है कि कौन क्या कह रहा है, क्यों हम अटके वहां पे, जरूरी था? तुम्हारा गोल क्या है? अगर किसी के बोलने से कुछ हो जाता है? नहीं। अगर समझो किसी ने सुबह सुबह आपको बोल दिया तुम पागल हो, तब तो तुम थे नहीं, और उसी बात को लेके शाम तक परेशान हो, तो शाम को तो तुम पागल ही हो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम। तो आप ये डिसाइड कर लो, किसी से बोलने से मेरे को क्या क्या फर्क पड़ता है मेरे में? किसी के बोलने से मैं वो तो नहीं बन जाऊंगा। मैं अपने समझ में, अपने सोचने से ही बनूंगा। वो अपने आप में वो लेके आओ। गुस्सा करनी बड़ी बात नहीं है। इट्स एवरीवन कैन डू इट। गेटिंग, इट्स नॉट अ हीरोइज्म। बहुत हैं लोग ऐसे। थैंक यू आकाश। होप माय आंसर हेल्प यू। थैंक यू मैम। यस। Any other question? Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून। मैम मेरा क्वेश्चन है कि आपका क्वेश्चन है? कभी कभी मैम सॉरी मैम, कभी 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 होता है कि डिसीजन लेने के टाइम कभी मन का बात अलग होता है, कभी दिमाग का बात अलग होता है। तो जब डिसीजन लेंगे तब मतलब किसका सुने, मतलब कौन राइट होगा, कौन दिमाग या दिल, कब मतलब क्यों थोड़ा। देखो, कंसिडरिंग योर एज, मैं ये बोलूंगी आपको, जब दिमाग की बात हमेशा सही नहीं लगती एट योर एज, क्योंकि हम अपने एक्सपीरियंस के साथ उसको जोड़ नहीं पाते। तो जब आदमी मतलब 40 एंड अबव हो जाता है, उसके साथ कुछ एक्सपीरियंस होते हैं, उसको उसको साथ में रख के वो डिसीजन कर पाता है। ठीक है? जैसे आपका एज हो गया अभी, तो पहले तो ये था कि हम दादा-दादी की सुनते थे, फिर नाना-नानी की, पापा-मम्मी की, सबकी सुनते हैं। आजकल वैसा नहीं होता। तुम्हें डिसीज़न खुद लेना होता है, और खुद लेना तुम लोग पसंद करते हो, मगर ये नहीं जानते कैसे लेना। अब उसी में अटके हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो सपोर्ट सिस्टम, बैक एंड का जो सपोर्ट सिस्टम हम जैसे लोगों के लिए मिला है, वो आपके लिए नहीं है। और अगर होता है तो भी आपको अच्छा नहीं लगता। तो डिसीजन ऐसे लिया जाता है। एक मैं अपने अपना तरीका बताती हूँ, आप फिर अपना सोचिए उसमें। क्वेश्चन क्या है, उसके रिलेटेड रिसर्च करिए, उसके साथ जोड़िए उसको, पॉइंट्स बनाइए, डोंट्स एंड डूज बनाइए, एक एक पॉइंट के लिए एक नंबरिंग दे दीजिए, जो इम्पोर्टेंट है और जो कम इम्पोर्टेंट है, और उसके हिसाब से वो डिसीजन हो सकता है। समझ रहे हो मेरी बात?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो it is all you have to know what is important for you. Give weightage to each of the factors in decision making. Okay, and accordingly you can reach. और ये साइंटिफिक तरीका होता है एक डिसीजन के लिए। मगर अगर कोई नीचे गिर रहा है, उसको पकड़ूं या ना पकड़ूं के लिए साइंटिफिक नहीं चलेगा। मैं दौड़ के जाके एम्पैथी दिखानी पड़ेगी उससे, है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Any other questions? I want one girl at least to talk. How many girls are there, by the way? So students, any other questions? No, sir. No, sir. No, can we wrap up today's session? Ma'am, there is no question, miss. Yeah. We can have, once Yeah. again, ma'am, this is the first time our final year students interact with the resource person. Because previously 3 webinars is over. Okay. So far, only 1 or 2 students, because it's only for technical session. I think Okay. technical session, our students are not like open their हाँ, वो mouth. पढ़ना पढ़ाई हो जाती है ना, हाँ, पढ़ना देखिए, पड़ता है। वो जनरल टॉपिक है ना, वो बहुत इंटरेस्ट कहता है, so emotional intelligence मेरे को I think I never expect some of the students asking इतना type of question है ना, ठीक है, मैं now understand that instead of technical session, if we have to conduct more general section means they are very eager to attend No, the that session. will lead to technical enhancement also. Yeah. Anyway, once again, thank you very much for the opportunity to share. And I should thank each one of you for your time, attention, and active participation. I'm sure you would have found the session, valuable. Some insights can apply whatever we discussed that in our daily life. And remember, learning is an ongoing journey, and it's just one step forward. Feel free anytime, any student, anybody can feel free to reach out, and I'll be more than happy to help them out. And this is in personal notes I'm telling Prakash ji. So किसी को भी कभी भी कुछ बात करना है, please reach out, and please become something in your life that is more important. Yeah, sure, ma'am. All the very best. And I'm feeling bad that I couldn't see each one of them, but it's okay. I'm happy that I'm a part of their life now, and maybe after some years also they will say a lady said me this. That's how I'm at. Thank you so much. Thank you so much. Now over to Sajid. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you, Thank ma'am. you so much, ma'am. Thank you so much for your time. It was, our students definitely taken the notes, and they have learned lots of things. And this is emotional intelligence, the very important topic, especially for the students' age. So thank you once again, ma'am. Thank you so much. Thank you all. Thank you so much for coordinating, and Prakash ji, thank you so much for the opportunity. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Can I take a leave? Yeah.